Good morning, students. Welcome to your online class, the students of Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today is your grammar class. This is for 5th, 6th, 7th and 8th. You can see this is your grammar book class 5. This is your grammar book class 6. This is your grammar book class 7 and this is your grammar book class 8. Now in all the books, the first lesson is sentences. Okay, so we will do the sentences chapter for all the 4 classes, 5th, 6th and 7th, 8th. Now what is a sentence? If you see the definition of a sentence, if you see in all the books, like in class 5 you can see the first lesson is sentence and the definition is given. Similarly you can see in class 6 also the first lesson is sentence and the definition is also given. Okay, so in 7th and 8th also the definitions are given of a sentence. So we will do the first chapter, that is sentences. So I'll write sentences here. You can see sentences. Okay, now what is a sentence? A group of meaningful words is called a sentence. Like if I write here, suppose if I write a group of words, Radha, girl, a good is. So this is a group of sentence. Radha, girl, a good is. These are words. ये words हैं लेकिन इनसे कोई मीनिंग नहीं निकला. They are not meaningful. तो we cannot call it a sentence. तो हम इसको sentence नहीं कह सकते हैं. Okay? What we can do is, अब अगर हम इन words को इनकी सही position पे लगाएंगे और इनसे कोई meaning निकलेगी तब हम उसे क्या कह सकते हैं? Sentence कह सकते हैं. Now I'll do it for you. Radha is a good girl. Okay, and then full stop. अब इसका मतलब निकल रहा है, दिस इज मीनिंगफुल. राधा इज अ गुड गर्ल. ऊपर भी यही वर्ड्स थे लेकिन ये सही ऑर्डर में लिखे हुए नहीं थे. अब अगर हमने इन वर्ड्स को सही ऑर्डर में लिख दिया है, राधा इज अ गुड गर्ल, तो इसकी मीनिंग निकल रही है. व्हाट इज द मीनिंग? ये राधा एक अच्छी लड़की है. सो स्टूडेंट्स, what is a sentence? A group of words which make some sense, it is known as a sentence. The definition is already written in your books, classes 5, 6, 7 and 8. Now there are 5 different types of sentences. Okay, now you can make a chart like this. आप एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं अपनी नोटबुक में. On the top you can write sentence. And here you can write the kinds or the types of sentence. First is your statement. Okay, statement means simple sentences, affirmative. Second is interrogative, that is question mark or question sentences. Then third is your imperative. Fourth is exclamatory एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव. ये सब आपकी बुक में दिए गए हैं, आप देखिएगा. पहला टाइप सेंटेंस हम कहते हैं एफर्मेटिव या स्टेटमेंट. सेकेंड इज इंट्रोगेटिव. थर्ड इज इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव. अब व्हाट इज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ये क्या है? आपके सेंटेंसेस हैं. ओके, सो टुडेज लेसन इज अबाउट सेंटेंसेस. व्हाट इज अ सेंटेंस? A group of words which make some meaning is called a sentence. It is given in the book. आपकी बुक में definition दी गई है. And how many types of sentences are there? There are 5 types of sentences: statement, interrogative, imperative, exclamatory, optative. ये मैंने short में लिखे हैं और next class में हम इन sentences के बारे में सीखेंगे. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में सेंटेंस हेडिंग डालनी है, सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है, ऐसे चार्ट बनाना है और उसके बाद मैं बताऊंगी इन चार्ट्स के नीचे आपको कैसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं. आई रिपीट, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. नाउ यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, आप बुक में भी देख सकते हैं.
आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कम ऑन सी। A sentence is a group of words having complete sense। ये यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं? A sentence always begin with a capital alphabet। सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल से स्टार्ट होता है। और किससे फिनिश होता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी से ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning, students of the Good Shepherd Education Center and Asha National English School. This is the grammar class for class 5, 6, 7 and 8. Okay, the first topic was sentences. This is the second class of sentences, and I told you that what is a sentence. This is the definition. A sentence is a group of words which make complete sense. सेंटेंस क्या होता है? वाक्य क्या होता है? एक शब्दों का समूह जिससे एक मीनिंग निकले, कोई मतलब निकले, उसे सेंटेंस कहते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हमने आपको बताया था, राधा गर्ल गुड इज़, इसका कोई मतलब नहीं है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं है। अगर आप ऐसे लिखेंगे राधा इज़ अ गुड गर्ल, इसका मतलब है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। ओके, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ टुडे वी विल सी द रूल्स। नाउ रूल्स फॉर मेकिंग अ सेंटेंस। फर्स्ट रूल इज अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल अल्फाबेट। पहला रूल है, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, सबसे पहला रूल है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड रूल इज इट मस्ट एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सेंटेंस को एंड किससे होना? कोई भी सेंटेंस हो, चाहे ये इंट्रोगेटिव हो, चाहे स्टेटमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो, ये क्या होगा? कैपिटल से शुरू होगा और किससे ख़त्म होना चाहिए? चाहे फुल स्टॉप से ख़त्म हो, चाहे क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो, और चाहे ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म हो। तीसरा रूल है इट मस्ट हैव अ वर्ब। इसमें वर्ब या क्रिया का शब्द होना ज़रूरी है। सो दीज आर द रूल्स। नाउ टुडे वी विल सी द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज स्टेटमेंट और एफर्मेटिव, यू कैन से सिंपल सेंटेंसेस और स्टेटमेंट। ओके, जब हम कोई बात कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा इट इज़ अ रूम, ये एक कमरा है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा हुआ? एफर्मेटिव हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ। अब देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल से। ख़त्म किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से, और इसमें वर्ब भी है। इट मीन्स ये एक सही सेंटेंस है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव जो यस में आंसर हो, नेगेटिव जिसमें नो लगा हो। अब ये क्या है? ये है तो स्टेटमेंट, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट है? एफर्मेटिव, यस वाला। अब अगर मैं इसी को कह दूँ इट इज़ नॉट अ रूम, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये नेगेटिव हो गया। ये एफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये किसके पार्ट्स हैं? ये स्टेटमेंट के ही दो पार्ट्स हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ओके, नाउ वी विल सी द सेकेंड वन, इट इज़ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। जो सेंटेंसेस हम क्वेश्चन या प्रश्न के रूप में पूछते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव कहा जाता है। गिव यू द एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम एंड अ क्वेश्चन मार्क। देखिए रूल्स, देखिए कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो रहा है, और ये क्या है? एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? फिर देखिएगा, डू यू लाइक टी, ये भी हम कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको चाय पसंद है? तो इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जो प्रश्न पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ये भी कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और किसी एक पंक्चुएशन मार्क से पे ख़त्म होंगे। जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया
कि सेंटेंस या तो फुल स्टॉप से ख़त्म हो, या क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो, या एक्सक्लेमेटरी साइन से ख़त्म हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। तो ये 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। पहला हमने आपको बताया स्टेटमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एफर्मेटिव जिसमें होता है येस का आंसर, और जिसमें नो या नॉट लिखा होता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको आज बताया इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक हैं या क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, कैपिटल से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। डू यू लाइक टी, ये भी क्वेश्चन है, कैपिटल से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो रहा है। ओके, रिमेनिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Hello students, this is the 3rd class of sentences, that is the grammar class for classes 5, 6, 7 and 8. We were doing sentences, हम sentences कर रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर चारों ही क्लासेस में है। ओके, इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट या इसको हम एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं या असर्टिव भी बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई है जो आपको कॉपी में लिखना है, ऐसे चार्ट बनाना है। फिर मैंने आपको उसके रूल्स बताए थे। अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल अल्फ़ाबेट, इट मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड इट मस्ट हैव अ वर्ब। फिर मैंने आपको टाइप्स एक्सप्लेन किए थे। पहला मैंने टाइप एक्सप्लेन किया था आपको असर्टिव का, या जिसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और इसमें मैंने आपको बताया थे 2 टाइप्स होते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव जो येस और नेगेटिव मतलब नॉट या नो। फिर मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताए थे, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। रूल्स आपको फॉलो करना है, कैपिटल से स्टार्ट होना है और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को ख़त्म होना है। नाउ वी विल डू द 3rd, 4th and 5th type. Now the 3rd type is actually imperative sentences. Okay, it is given imperative sentence. Imperative sentence 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर और या एडवाइस। प्लीज़ लिसन केयरफुली। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। रिक्वेस्ट जिसमें प्लीज़ लगा हो, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, प्लीज़ डू माई वर्क, जिसमें प्लीज़ लगा होगा ये कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट वाला, लेकिन आएगा ये इम्पेरेटिव में ही। ओके, दूसरा होता है ऑर्डर या कमांड, जिसमें हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं। डोंट टॉक, डोंट शाउट, डोंट प्ले आउटसाइड, ओके, शट अप, सिट डाउन, ये क्या है, हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो ये क्या होगा, ऑर्डर, ये भी इम्पेरेटिव में आएगा। थर्ड होता है एडवाइस, जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं। यू शुड नॉट प्ले ऑन रोड, जैसे हम कह रहे हैं तुम्हें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, ये हम सलाह दे रहे हैं। यू मस्ट टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ये हम क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो ये भी किस में आएगा, इम्पेरेटिव में। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैव 3 टाइप्स, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। ओके, now we do the 4th one, that is exclamatory. You can see over here exclamatory. Now what is exclamatory? जब sudden feeling of joy, sadness, surprise, जब बहुत खुशी की बात, बहुत दुख की बात या बहुत आश्चर्य की बात होती है तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। इनको आप कैसे पहचानेंगे, इनमें लास्ट में आप देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगा होना चाहिए। जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा यहाँ पर और ये कोई बहुत दुख की या खुशी की बात बताएंगे तब ये वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे ओह आई गॉट हर्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, ओह मतलब दुख है, अरे मुझे चोट लग गई। वाओ व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, अब ये क्या है, खुशी की बात, अरे वाह कितनी अच्छी कितनी बड़ी बिल्डिंग, तो ये क्या हो गया, जॉय या खुशी। व्हाट ही डाइड इन एक्सीडेंट, अब ये आश्चर्य की बात है, अरे वो एक्सीडेंट में मर गया, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, वेयर वी हैव द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी, सैडनेस, दुख, सरप्राइज, आश्चर्य। एंड द लास्ट इज the optative sentences. You can see optative sentences
इसमें कोई विश या प्रेयर, अगर आप किसी को कोई दुआ दे रहे हैं या किसी के लिए कोई मंगल कामना कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये भी देखिए आप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ही ख़त्म हो रहा, दोनों एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों ही एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जॉय, सैडनेस और सरप्राइज, और इसमें कोई विश या प्रेयर होती है। तो मे यू लिव लॉन्ग, मेरी प्रार्थना है कि तुम आप बहुत लंबा जिए, या मे गॉड ब्लेस यू, मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बहुत आशीषित करिए, प्रार्थना है, ये विश है किसी के लिए। तो इन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यू हैव टू राइट दीज 3 रूल्स। आपको ऐसे चार्ट बनाना है पूरा अच्छे से, पूरे पूरे नाम लिखने हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको पूरे पूरे लिखने हैं, और फिर आपको ऐसे 1-1 एग्जाम्पल करके आपको हर सेंटेंस के नीचे लिखना है। ओके, आप एक ही सेंटेंस ले सकते हैं जिसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए आप वो भी ले सकते हैं, या जो सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए गए हैं आप उनको भी लेकर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।